Hello students. In my previous video, we had already discussed about the solution of the pair of linear equation by reducing them. Now, in this video, we are taking some very important statemental question which is solved by reducing method and some different question. So let's begin. In exercise 3.6, statemental problem, Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. So do you know very well about the downstream and upstream? In the downstream, then speed of the water with speed of that, both are that thing are steamer, and upstream in the opposite direction. So firstly here we want in speed in still water and speed in current. So let speed of Ritu in still water be x km per hour and speed of current be y km per hour. So speed in downstream, so speed of Ritu in still water x km and speed of current is y km. So what is the speed of downstream? Is it clear? So for the downstream, still water and current both speed are adding, then we got x plus y km per hour, and speed of downstream, speed in downstream, then now here is speed in up stream equal to x minus y km per hour. Here is very necessary point. Always stream of the current, stream speed of the current is always subtract from the still water of the boat or steamer or the Ritu in air well. So according to question, Ritu can row down 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. तो रितु क्या करती है, 20 किलोमीटर 2 घंटे में कवर करती है. तो वी नो वेरी वेल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास 20 किलोमीटर है और टाइम कितना ले रहा है 2 आवर ले रहा है. तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर करेगा, डिस्टेंस 20 और टाइम 2, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड हमारे पास x है तो टाइम 2 लग रहा है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम. इज इट क्लियर? तो 20 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 2, और इन अदर वे यू कैन राइट 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20. 2 1s are 2, 2 10s are 20. Then we got x plus y equal to 10. It is your equation number first. And what is the second? Here is the 4 kilometer in 2 hour. तो 4 किलोमीटर कवर करता है, मीन्स क्या हो जाएगा 4 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम. तो इम्प्लाइज 2 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2. इट इज इक्वेशन नंबर 2. तो एडिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 इज द एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2. वेरी इजी. अगर हम दोनों ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक्स एक्स प्लस हो जाएगा और प्लस वाई और माइनस वाई है तो कैंसिल हो जाएगा. तो ले लेते हैं डायरेक्ट. एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट LHS में क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 10 प्लस 2, वाई वाई कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 12. इज इट क्लियर? तो 2x इक्वल टू 12, तो हमारे पास हो जाएगा x इक्वल टू 12 अपॉन 2 इक्वल टू 6. तो x की वैल्यू क्या आ गई 6. तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 में या 2 में. तो अगेन पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट. तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा. तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 6 इक्वल टू 4.
तो वी गॉट y इक्वल टू 4. तो देयरफॉर स्पीड ऑफ Ritu in still water, speed of Ritu in still water is equal to 6 km/h and speed of current is equal to 4 km/h. तो here is basic नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, बोट या स्टीमर जो भी होता है उसकी स्पीड में करंट की स्पीड या स्ट्रीम की स्पीड प्लस हो जाती है और अप स्ट्रीम में माइनस हो जाता है. इज इट क्लियर? तो हियर वेरी नेसेसरी, ऑलवेज स्ट्रीम इज एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग. थैंक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन, बट इट इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच अर्लियर सॉल्व. Here 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. Okay? तो यहाँ पे क्या है कि ये डिफरेंट टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे 2 women and 5 men can finish an embroidery work in 4 days. कि यहाँ पे 2 वर्कर्स एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, 2 वुमेन्स और 5 मेंस किसी वर्क को 4 डेज में फिनिश करते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी होता है. और नेक्स्ट 3 वुमेन एंड 6 men कैन फिनिश द सेम वर्क इन 3 days. ओके, बट यू नो बोथ मैन एंड वुमेन्स वर्क कैपेसिटी इज नॉट द सेम. सो हियर इज़ वेरी नेसेसरी टू फाइंड द वर्क कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअली. तो फर्स्ट वी find out the 1 woman alone to finish the work. So first suppose let 1 woman alone finish the work in x days and 1 man alone finish the work in y days. Is it clear? तो वुमेन्स के लिए हमने ले लिया कि वो x डेज में फिनिश करेंगे और मैन y डेज में फिनिश करेंगे. तो इन 1 डे का परफॉर्मेंस दोनों का हम चेक कर लेंगे. सो वर्क डन बाय 1 वुमेन इन 1 डे इक्वल टू 1/x. इज इट क्लियर? एंड वर्क डन बाय 1 man in 1 day equal to 1/1. अगर x डे में कोई वर्क फिनिश करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 1 दैट वर्क. फॉर एग्जांपल जैसे कोई वर्क अगर 4 डेज में फिनिश होता है तो 1 डे में कितना वर्क हो रहा होगा? उसका 1/4 हो रहा है. सिमिलरली 1 डे में कितना करेंगे? 1/x करेंगे और 1 man कितना करेंगे? 1/y करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो 1 woman कैन फिनिश वर्क इन 1 डे इक्वल टू 1/x. But according to question 2 women and 5 men. So 2 women do the work in 1 day equal to 2/x and 5 men can do the same work in 1 day equal to 5/y and finish in 4 days. So in 1 day work is equal to 1/4. So according to question we got 2/x plus 5/y equal to 1/4. Is it clear? It is your equation number first. And second is 3 women and 6 men. Women 1/6 means 3/x और men 6 हैं तो 6/y. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3/x plus 6/y equal to 1/3. ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2. तो इसको हम रिड्यूसिंग मेथड से कर सकते हैं. 1/x को u सपोज कर लें या a सपोज कर लें और 1/y को b ले लेंगे तो इजी वे में लग जाएगा. तो लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b. इसको हमने दे दिया नाम इक्वेशन नंबर 3. तो यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 एंड 2. ओके, तो वी गेट हमें क्या मिल गया?
ये हो जाएगा 2a प्लस 5b इक्वल टू 1/4। तो इसको हमने एक नया नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। और ये हो जाएगा 3/x है, मीन्स 3a प्लस 6b, 6 थोड़ा सा हमने कर्व किया है, b थोड़ा डिफरेंस वॉच करिएगा, 1/3। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वलाइज करने के लिए क्या करना है, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 5 से कर दें, या इसको 3 से और 2 से। तो यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4/3 एंड इक्वेशन 5/2। इज इट क्लियर? तो इसको 3 से करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 2 जा 6a, 3 5 जा 15b इक्वल टू 3/4। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। और इसको 2 से करोगे, 3 2 जा 6 प्लस 6 2 जा 12b इक्वल टू 2/3। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 7। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जैसे इक्वेशन नंबर जिस न्यूमरल में यूज़ करिएगा, जैसे हिंदू एरोबिक में या रोमन में, तो वही टर्म यूज़ करिएगा। ऐसा ना हो कि पता चले हमने यहाँ पे 1 और 2 इस वे में यूज़ कर दिया और फिर यहाँ पे 1 2 3 रोमन में यूज़ कर लें, तो वो टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये हमने सिंबल यूज़ किया है और सिंबल जिस शेप में होता है उसी शेप में हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इज़ इट क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या कि दोनों का साइन सेम है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज कर देंगे। यहाँ हम लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो ये कैंसिल हो गया। 15 में से 12 माइनस किया तो 3b इक्वल टू आ गया 3/4 माइनस 2/3। तो 3b इक्वल टू 12 एलसीएम हो जाएगा हमारे पास, तो 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8। तो क्या आ गया 3b स्क्वायर टू 1/12। तो b इक्वल टू 1/12, 3 ज़ा 36। इज इट क्लियर? तो b की वैल्यू आ गई 1/36। तो एक स्टेप मेरे पास ये आ गया, इसको डाल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 8। पुट b इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन 5। तो हियर इज 3a प्लस 6 इंटू 1/36 इक्वल टू 1/3। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो 3a प्लस 1/6 इक्वल टू 1/3। 3a इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6 इक्वल टू, हियर इज एलसीएम 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। तो क्या आ जाएगा 1/6। तो इधर से हमारे पास क्या आ गया 3a। तो a इक्वल टू 6 3 जा 18। तो a की वैल्यू आ गई 18। तो वी नो फ्रॉम इक्वेशन 3rd वी हैव 1/x इज इक्वल टू a। तो बट a इक्वल टू 1/18, तो इम्प्लाइज 1/x इज इक्वल टू 1/18। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 18 एंड 1/y इज इक्वल टू b। तो बट b इक्वल टू 1/36 आया था, तो क्या हो जाएगा इम्प्लाइज 1/y इज इक्वल टू 1/36। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 36। तो x सपोज किया था किसका कि ओमेन की वर्किंग, और y किसके लिए था, मैन के लिए। तो देयरफॉर 1 ओमेन alone do work in 18 days and 1 man alone finish work in 36 days. That's all.